अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हुसूल अराजी बिल में तरमीम बालाए दस्तूर, कॉरपोरेट तबके को फ़ायदा पहुँचाने का इक़दाम, बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से मुखालिफत। MLC इंतखाबात के बाद 3,36,000 अफराद को पट्टे फराहम करने, असम्बली में वज़ीर आला का ऐलान। तमाम सरकारी इम्तिहानात के उर्दू ज़बान में इनेकाद के लिए संजीदा इक़दामात करने, हुकूमत से अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। हैदराबाद के पुराने शहर में चेस्ट हॉस्पिटल कायम करने का मुतालबा, अराजी की फराहमी में मदद की पेशकश। चिल्लापल्ली में वेल्डिंग के दौरान एक खाली टैंकर में धमाका, एक शख्स हलाक और टैंकर का ड्राइवर शदीद जख्मी। और शाह इनायतगंज में खातून की मौत के 1 साल बाद कत्ल का इंकशाफ, औलाद ही कातिल निकली। और अब तफसील। सदर मजलिस और रुकन लोकसभा हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुसूल अराजी बिल में तरमीम की मुखालिफत की है। लोकसभा में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कॉरपोरेट इदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बिल में तरमीम की गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा जमहूरी मुल्क नहीं है जहाँ पर सनतों के क़ियाम के लिए किसानों और मछेरों से अराजी हासिल की गई हो। बैरिस्टर ओवैसी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमतों की तरफ से हासिल की गई हज़ारहा एकड़ अराजी का हवाला देते हुए कहा कि इससे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस तरमीम को बालाए दस्तूर करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के बास फैसलों के हवाले भी दिए। Sir, I stand to oppose the bill and I agree with at the outset the views expressed by the honorable members of different parties who have put forward their views in opposing this bill. Sir, I would like to know from the Treasury benches that the Parent Act that was passed, after it came into existence, the Supreme Court had given various judgments upholding the Parent Act. The Supreme Court had embraced the Parent Act. The Supreme Court did not found it ultra-virus or going against the principles of natural justice. And the Supreme Court in Pune Municipal Corporation upheld Section 24(2). In Radicap Finance, the Supreme Court upheld Section 24(2) and said it's a statutory right. In Balaji Nagar, in Shivraj, in Velaxan Kumar, these are the landmark judgments given to the Supreme Court. The government has no reason or rhyme whatsoever to bring an amendment. Sir, this is nothing but a dictatorial attitude of government bringing such a legislation without reason. And these are based on nauseatingly vague assertions of the need for development, sir. A mention was made over here that the Honorable Finance Minister in his press conference stated that if SIA is asked for, then this will lead to a sabotage by a neighboring country. I would like to know what kind of arrogance and ignorance is this, that you allow FDI and PPP in defense. That is not a threat to national security. But when it comes to social impact assessment, the finance minister says that this can be sabotaged by a neighboring country. The government talks about, my request to the government, sir, they ask for suggestions. Show me one democracy in the whole world which has such a legislation. Show me one government in the world which takes lands from farmers, from people and resources, from fishermen and gives it to private individuals. We cannot give any example in any democracy wherein such a law was enacted. If you want land development, and who's stopping it? And this talk that industries development has not taken place, sir, we would like to educate the Honorable Prime Minister that in 66 years, yes, development has happened. The development that has not happened, which we wanted, that is true. But to say it has not happened, and I have an Alauddin ka lamp which I rub and everything happens, what's going to happen? Sir, let me also put, why can't the government ask the government to go for private purchase? Cochin Airport is the biggest example of acquisition through consultation. IIM Ahmedabad has done a study on it. Why can't lease be happened? I have just heard, sir, and this
amendment are against Article 14 of equality. Why do I say that? Because what kind of favoritism is this, that when it comes to industrial corridors, land can be acquired, but I want land to be acquired for preservation of wildlife. What about preservation of wildlife? So that is why this goes against Article 14. Your amendments are extra constitution. They will not stand the test of law as the Parent Act has stood and withstood the test of law. Sir, the government argument is about eminent domain, where I agree eminent domain is there, but eminent domain cannot go against Kameshwar Singh Supreme Court judgment. Justice Mahajan found that even if the Constitution did not expressly provide that a public purpose was required for employing eminent domain, such a condition is employed. That is what the Supreme Court said. So this argument of eminent domain has to go along with right to equality. Argument of eminent domain has to go with public purpose. And lastly, sir, before I conclude, I think so that maybe I might be wrong, that we did a mistake as of hindsight, that why did we amend, why did we bring Article 44? What was the purpose behind bringing Article 44 of Constitution? Why did we amend Article 31? Did we bring in 44th Constitutional Amendment? Did we amend Article 31 so that our resources of poor man can be given to rich people? As I can give an example, Telugu Desam people have just now set up Hyderabad. In the tenure of Telugu Desam and other governments, 88,000 acres, sir. 88,490 acres was given to private individuals. The CAG report said 88,000 was given to 1,000 people, and the CAG report said no public purpose was served. Is this the exploitation you want, sir? Is this the exploitation wherein our resources will be taken away? Let me give a classic example of Maharashtra. Warasgaon Dam, 161 hectares of land was acquired. Now what we see after Lavasa has come, around the dam, houses have been constructed. So where is the public purpose? This amendment, this bill is nothing but a tool to exploit the people of India and to ensure that in this farce of development, you want to ensure that all these corporates can take away all our resources. That is why, sir, I oppose this bill. I oppose all this amendments the government is moving, and this is extra constitution. And lastly, sir, my last point is, this government stands by the theory of integrative humanism of Pandit Deendayal Upadhyaya. Pandit Deendayal Upadhyaya, I strictly oppose his theory, but in his theory he said about land, about forest. Where is your ideologue theory? Why are you not standing by the theory of your ideologues? Thank you, sir. तेलंगाना असेंबली में मंगल को हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान लफ्जी झड़प और तकरार देखी गई। कांग्रेस की रुकन डी के अरुणा के रिमार्क पर हुक्मरान जमात के अरकान ने एहतजाज किया। बाद में तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस हुए। तेलंगाना बजट इजलास के तीसरे दिन भी हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान लफ्जी बहस के दौरान कांग्रेस के रुकन डी के अरुणा ने माइक तोड़ दिया। इजलास के आगाज पर वक्त सवालात के दौरान जिले महबूब नगर की कृष्णा नदी पर पुल की तामीर से मुतालिक सवाल पर डी के अरुणा बात कर रही थी। उस वक्त हुक्मरान जमात के अरकान ने उन पर रिमार्क्स करते हुए कहा कि जब वो वजीर थी तो उस वक्त क्यों पुल की तामीर के लिए इकदाम नहीं किए गए। हुक्मरान जमात के इस रिमार्क पर डी के अरुणा बरहम हो गई और उन्होंने अरकान को मुंह बंद करने के लिए कहा। कांग्रेस के रुकन ने कहा कि खवातीन से बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए काबीना में भी एक खातून वजीर भी मौजूद नहीं है। रियासती वजीर KTR ने मदाखलत करते हुए कहा कि मौजूदा हालात की वजह से खवातीन को काबीना में नुमाइंदगी नहीं दी गई है, लेकिन यह हुकूमत किसी खातून IAS ओहदेदार को जेल भेजा और न ही किसी वजीर के खिलाफ मुकदमा आयद किया है। KTR ने कहा कि यह असेंबली है, यहां पर महबूब नगर की दादागिरी और बंगले की सियासत नहीं चलेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया और डी के अरुणा भी बरहम हो गई और उन्होंने अपना माइक तोड़ दिया। हुक्मरान जमात के अरकान ने भी शोरगुल शुरू कर दिया, जिसके बायस स्पीकर ने कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। बाद में इजलास दोबारा शुरू हुआ तो दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी जंग जारी रही। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि असेंबली के विखार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अरकान को सब्र व तामुल की ताकीद करते हैं, लेकिन हुक्मरान जमात की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि एक वजीर ने असेंबली में गैर महज़िब लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, इसके बावजूद भी वो खामोश रहे। इस दौरान वज़ीर आला ने मुदाखलत करते हुए कहा कि जाना रेड्डी ने जो कहा है वो इससे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन वजीर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किया है इन्हें सुना है
और स्पीकर से मुतालबा किया है कि वो फुटेज का मुशाहिदा करके फैसला करे। वज़ीर आला ने जगदीशर रेड्डी को भी अल्फाज पर अफसोस करने की हिदायत दी। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चेस्ट हॉस्पिटल पुराने शहर में कायम किया जाए। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि पुराने शहर में चेस्ट हॉस्पिटल के क़याम के लिए अराजी की फराहमी में भी वो हुकूमत की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि पुराने शहर से हाईकोर्ट की मुंतकिली की भी वो मुखालफत करते हैं क्योंकि कई सरकारी दफातर पहले ही यहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हाईकोर्ट को पुराने शहर में ही बरकरार रखा जाए। मजलिस के फ्लोर लीडर ने मरकज़ से तेलंगाना को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए करारदाद पेश करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हुकूमत से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पुराना शहर इस्तांबुल कब बनेगा। Honorable Chief Minister, sir, the total life pensioners, and these are not my figures, these are the figures of the website. The total life pensioners are 30,76,892. I repeat, 30,76,892. And the share of minority pensioners in 30,76,000 is only 41,230. Out of 30 lakhs, only 40,000. हमसे लोग पूछ रहे हैं, आप हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं और क्या मिला? शायद चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम। और अगर परसेंटेज देखते हैं, इफ यू हैव टू सी द परसेंटेज ऑफ द टोटल लाइफ पेंशनर्स, द परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटीज इज 1.34% ओनली। 1.34 सर। तो आप बताइए, क्या यह नाइंसाफी नहीं है? क्या इस पर इंसाफ का मुतालबा हम जो कर रहे हैं क्या गलत है? आज ये सारी बातें, बेशक हम जानते हैं कि आपको मसाइल हैं, आप हुक्मरानी करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं हालात को, जायजा ले रहे हैं, स्टाफ नहीं था, कई मसाइल हैं इस तेलंगाना के सामने, लेकिन ये नाइंसाफी जो हम आपके सामने ला रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस पर इंसाफ हो। अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर वही होगा जो कांग्रेस और तेलुगु देशम वालों ने हम मुसलमानों के साथ किया। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। Thousands of households have been left out under intensive household survey. Samagrana, Kundama survey in state, particularly Hyderabad city, the household data is thus incomplete, causing problems in processing the application of pension, food security cards and other benefits. The leftover households were to be covered subsequently, but this has not been done, leaving the officials with incomplete data. The uncovered household run the risk of losing out on benefits under various welfare schemes. The survey must be completed for the leftover household. The food security cards to replace the ration cards are yet to be given to poorer families. The applications were invited months ago. The proper process of identifying the families for issuance of food security card is yet to be completed. Instance of linking the food security card with Aadhaar card is causing problems. This is causing problems. Unless there is 100% coverage of all residents, household under Aadhaar scheme, there is no reason to link these cards with the welfare schemes. But at the same time, I would like to make a request is that when you're giving this to Dalits, kindly give not 3 acres, at least 1 acre to a Muslim farmer also. Please do not forget them also. I'm not asking for 3 acres. I'm asking for 1 acre. And I hope that you would do this. The governor address में ये बात पर भी खामोशी है। हम अखबारात में पढ़ें कि सेक्रेटेरिएट शिफ्ट होगा, चेस्ट हॉस्पिटल को जाएगा। गवर्नर एड्रेस में उस पर भी कोई बात नहीं की गई। नया बनता है, बहुत अच्छा है। एक ऑलिव ब्रांच दी जा रही है आंध्रा के लोगों को। एक आंध्रा के लोग जो कुकटपल्ली और उस एरिया में रहते हैं, उनको यह पैगाम दिया जा रहा है कि हमारी हुकूमत आपके साथ भी है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट कुकटपल्ली में आएगा तो आंध्रा के लोगों को बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, होने दीजिए, करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में कहा कि सेटलर भी नहीं पुकारना चाहिए। बहुत अच्छा है, करिएगा। हम आपको मुबारकबादी देते हैं कि आंध्रा के लोगों के बारे में आप इतना सोचते हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि आंध्रा वालों को जाने की बात कही गई। अब यह वक्त भी आया है सुनहरा तेलंगाना में कि आंध्रा वालों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमत तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट चेस्ट हॉस्पिटल में ला रही है। बहुत अच्छा है, हम इसका खैर मुकदम करते हैं। इसके साथ एक छोटा मुतालबा करते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बच्चे
जो तेलंगाना एजुटेशन में बहुत एहतजाज करे थे तेलंगाना को हासिल करने के लिए, 2009 से वो मेस चार्जेस नहीं दिए हैं। 7 करोड़ है साहब उनके, ओनली 7 करोड़, only 7 crores are the mess charges which are due by the students of Osmania University. Kindly waive that this 7 crores, sir. Kindly waive this. तो एक तरफ आंध्रा वाले भी खुश होंगे, तेलंगाना एजुकेशन करने वाले तेलंगाना के बच्चे भी खुश होंगे, अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहूंगा कि आप चेस्ट हॉस्पिटल को, अगर शहर हैदराबाद में जमीन नहीं है तो पुराने शहर में चेस्ट हॉस्पिटल को लेकर आइए, हम जमीन देंगे, हमारे पास जमीन है, यहीं पर रहने दीजिए हैदराबाद में चेस्ट हॉस्पिटल को। वखाराबाद में हॉस्पिटल है, वहां पे एक रहेगा, ये कुकटपल्ली का हॉस्पिटल को पुराने शहर में लेकर आइए, हम जमीन आइडेंटिफाई करके देते हैं आपको, ताकि चेस्ट हॉस्पिटल हैदराबाद में ही रहे और आपका सेक्रेटेरिएट कुकटपल्ली में भी बन जाए। दिस विल बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। आई होप द गवर्नमेंट वुड मेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ऑल्सो सर, ये 2 बेडरूम के घर बनाने का वादा हुआ, सीआईडी इंक्वायरी बोले, इंक्वायरी हो रही है, कब होगी नहीं मालूम, लेकिन इंक्वायरी के चक्कर में अब तक एक भी घर नहीं बना। कब बनेंगे? फ्री एजुकेशन फॉर केजी टू पीजी की बात की गई थी, हम उम्मीद करते हैं कि यह होगा। आई हैव द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्कूल्स। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना रियासत की तमाम मुलाजिमतों के लिए मुनक्किद किए जाने वाले तहरीरी इम्तिहानात में उर्दू के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम करने पर जोर दिया। असम्बली में वज़ीर आला और अकबरुद्दीन ओवैसी के दू बदू सवाल और जवाब का मुज़ाहरा देखा गया। उर्दू नोइंग पर्सन एज अ मेंबर, बिकॉज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उर्दू के साथ मुसलसल नाइंसाफी होती रही, उर्दू को उसका मुकाम नहीं मिला और डीएससी के रिक्रूटमेंट में SC STs के लिए जो पोस्ट रिजर्व किए जाते हैं, उर्दू नोइंग समझकर वो डी रिजर्व करने का जो अमल करना है 2011-12 से आज तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कई उर्दू मदारस व कॉलेजेस में उर्दू पोस्ट वेकेंट है। तो इस पर मैं हुकूमत से चाहूंगा कि संजीदगी के साथ इस पर गौर करके कुछ फैसला करें, ताकि उर्दू खत्म ना हो जाए बल्कि उर्दू जिंदा हो आपकी हुकूमत में। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो as to when the government would initiate the applications for fresh post-matric scholarship and fees reimbursement and renewal of the current academic and financial year. When will these students get the post-matric scholarship and fees reimbursement for the current financial and academic year? When will the government formulate the guidelines and call for application for subsidy on bankable loans for minorities? Will the government reconstitute the inquiry commission by appointing a retired judge to go into the issue of enhancing reservation for backward Muslims to 12%? When I make a demand of a retired judge, probably this will help to know the legal issues if a retired judge is there. Is the government going to do that or not? I would like to have a clarification on that. What are the steps taken by the government to ensure the existing 4% reservation of Muslim under BCE category are implemented in letter and spirit, both in admissions to professional courses and in recruitment in government departments? Our party has made a demand of conducting an Urdu examinations for all government recruitment, whichever vacancies are going to come in any department, government jobs में उर्दू में भी इम्तिहान लिखने के लिए हमारा मुतालबा है। इस ताल्लुक से मैं चीफ मिनिस्टर साहब से जवाब चाहूंगा। And also I had requested the government about, please do not increase the property taxes in GHMC area, and also converting the residential properties into commercial, and also not to increase the VAT. Everywhere VAT is supposed to be increased, on cloth, on gold, on hospitals and all. Sir, you are a very learned man, elderly man, experienced man. I am not a learned man, not really very experienced, but I try my level best. Okay, whenever I come in this house, I come with right, proper and all the information. If I do not have any information, I would prefer not to talk on that subject. The figures which I had given on the pension was from the website of the state government, and those are not my figures. And if there is anything wrong in these figures, then the action should be initiated against the people responsible for monitoring and managing this website, sir. Sir, it is very shocking. I don't know if there is another website for
Honorable Chief Minister, from which they have said, sir, but the figures are really shocking, sir. Through you, sir, I would give this to the Honorable Chief Minister. He can verify this, he can find out, sir. इसके जवाब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साबिका हुकूमतों ने जो कार्रवाइयाँ की हैं उन्हें सुधारने के लिए वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। जीएचएमसी कमिश्नर से भी कहा जाएगा कि गैर ज़रूरी हरासा न करें। इसके अलावा उर्दू को उसका मुस्तहक़ा मकाम दिलाने के लिए हुकूमत अपने वादे की पाबंद है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एमएलसी इंतखाबात के बाद 3,36,000 अफराद को पट्टे दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने इस बात को दोहराया कि तेलंगाना फाजिल बजट रखने वाली दौलतमंद रियासत है। वज़ीर आला ने दावा किया कि आइंदा मार्च तक बरखी कटौती का मसला भी हल हो जाएगा। अध्यक्ष, फाइनेंस कमीशन के जो फैसला है उससे आप सहमत है क्या, सेटिस्फाइड कर बोल के आप पूछे। इसमें काफी चीजें हैं, जैसे आप एक बात में पूछे एक बात में नहीं बताया जा सकता, वो बड़ा लंबा चौड़ा रिपोर्ट है। दूसरा, आपने पूछा कि 24 स्कीम्स में जो कटौती हुआ उसके बारे में आपका स्ट्रेटेजी क्या है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा, दैट इज पार्ट ऑफ द बजट टुमारो। इफ आई एम रिव्यूइंग ऑल द बजट टुडे, इट विल बी अनफेयर ऑन माई पार्ट। You will come to know through the budget document, through the demands which are going to come before you. I think you can gather that information from that. Government strategy is very clear under those schemes, where it was made minus, plus everything is there. That account can be only known to you through the budget figures, which I am not able to say. I would not like to say also. Official language उर्दू के बारे में आपने कहा, ये जरूर कहावत भी है, मैंने पहले भी कह चुका हूं। उर्दू की पैदाइश हैदराबाद है, उर्दू की परवरिश हुई दिल्ली में, और उर्दू जवान हुई लखनऊ में। ये कहावत है पूरे देश में। तो हमारा जो पैदाइशी जुबान है उसको हर लिहाज से बचाना है। हमने आज तक तेलुगु ऑफिशियल लैंग्वेज चेयरमैन भी नहीं डाले। इसके कई वजह है। पहले लोग पूछ रहे थे वाइस चांसलर नहीं है, काउंसिल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। गुज़िश्ता सरकार जिन वाइस चांसलर को अपॉइंट किया था उन्होंने बड़ा गंदा काम कर दिया था। जाते जाते शर्म, मुझे भी शर्म आता है बात कहते हुए, जाते जाते उन्होंने किसी चीज को गौर नहीं करते हुए 300, 400 लोगों को अपॉइंट करके चले गए। उस पर इंक्वायरी भी साबिका एजुकेशन मिनिस्टर उस पर इंक्वायरी भी ऑर्डर कर चुके हैं, इंक्वायरी हो रहे। और उसमें थोड़ा तब्दीली भी मैं करना चाहता हूं। पहले सरकार कुछ तब्दीली किए थे, 91 का जो यूनिवर्सिटीज एक्ट था उसमें तब्दील करके सरकार अपना पूरा हक को बैठा। यहां से भेजो 3 नियम, फिर 3 में से एक कोई और सेलेक्ट करेगा, ऐसा कुछ कानून बदला हुआ है, उसको बदलना है। हो सकता है इसी ऐवान में, इसी सेशन में हम लोग बिल भी लाए। और बाकी 4% रिजर्वेशन विल बी डेफिनेटली इंप्लीमेंटेड, जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके बारे में हर कदम उठाया जाएगा। अगर आपके इल्म में कोई बात है तो बताना। आपका जो 7 कोर्स वाला फीस का मामला है उसको मैं यहीं से अनाउंस करता हूं, दैट विल बी वेव्ड, डेफिनेटली दैट विल बी वेव्ड, बट ओनली आफ्टर द एमएलसी इलेक्शन, नॉट बिफोर द एमएलसी इलेक्शन। तो इस वास्ते जीएचएमसी टैक्स का आप बता रहे, सरकार के तरफ से जीएचएमसी को कोई आदेश नहीं है, कोई हुक्म हमने नहीं दिया। दूसरी बात भी मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं, कुछ नर्सिंग होम्स का टैक्स बढ़ाया नहीं गया, लेकिन असेसमेंट रीअसेसमेंट के लिए कहा गया, और उसका गवर्नमेंट गरीबों के लिए बहुत सोचेंगे। नहीं, ठीक है, मैं आई विल कम विथ प्रपोजल फॉर दैट, ये वो नहीं होगा। और दूसरा बात है, आपने पेट्रोल के बारे में बताया और कमर्शियल टैक्स के बारे में बताया, आपको कोई गलतफहमी था। वैट जो बढ़ा रहे, जो लोग कलेक्ट करके अपने पास रख रहे, सरकार को नहीं दे रहे, वो लेने की वो कोशिश है। जो ऑर्डर दिया गया वो उसका है। अगर तोल के देखे आंध्र प्रदेश के पेट्रोल डीजल के हिसाब से हमारे पेट्रोल डीजल के हिसाब कम है। अब लारियां वाले, गाड़ियां वाले हमारे पास पेट्रोल भर के वहां जा रहे, ये इतना है। हाँ, आप देख लीजिए, ये हो रहा है। दूसरा, आपने जो रेशन कार्ड या पेंशन के बारे में कहा, अभी भी मैं बोल रहा हूं आपको,
ये उसके बारे में मैं आपको बताता बोला, आपको बता दूंगा, उसमें कोई शक नहीं है। और उर्दू को बचाना है जरूरी। क्या चाह रहे थे आप? सरकारी तकर्रुरात जितने भी हो गए उसमें इम्तिहान उर्दू में भी लिखे रहे। उसके बारे में across the table I will not be able to say. We will have a meeting on that. जो टीचर्स के बारे में आप कह रहे, जहां उर्दू टीचर की कमी है, वो तालीमी इदारे अच्छे काम नहीं कर पा रहे टीचर की कमी रहने की वजह से। तालीमी एजुकेशन मिनिस्टर से मैं आज ही कह देता हूं, असल उर्दू मीडियम स्कूल को चलाना कैसा है, या एक असेंबली में तय करके स्पेशल प्रोविजन पास करे, रिजर्वेशन में जाते उसमें टीचर नहीं आएंगे वहां पे, तो उसको कैसा कॉम्पेंसेट करेंगे। उन सारे चीजों के लिए मैं एक मीटिंग बुलाता हूं, मीटिंग में पूरा फैसला करेंगे, एक संजीदा हम लोग डिसीजन लेंगे, उसको हम अमल करेंगे। फलकनुमा पैलेस से मुत्तसिल मस्जिद फलकनुमा की वीरानी पर फौरी 4 टीवी पर एक रिपोर्ट दिखाई गई थी, जिसके बाद मंगल को मस्जिद में नमाजों की अदायगी का आगाज़ हो चुका है। पीर को जब 4 टीवी ने जैसे ही रिपोर्ट नशर की, मकामी अफराद ने मस्जिद पहुंचकर सफाई के कामों का आगाज़ किया। मंगल की सुबह भी मकामी नौजवानों की कसीर तादाद मस्जिद में देखी गई। मस्जिद फलकनुमा में ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा की गई। न सिर्फ मकामी अफराद बल्कि शहर के दूसरे इलाक़ों से भी मुसलमानों ने मस्जिद पहुंचकर नमाज अदा की। इस मौके पर मकामी अवाम ने 4 टीवी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि वो मस्जिद को फिर से आबाद रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब वक्फ बोर्ड के हुक्काम को भी चाहिए कि वो फौरी हरकत में आएँ और मस्जिद को मुकम्मल सहूलतों की फराहमी बिलखुसूस रास्ते को हमवार करने जैसे कामों में हिस्सा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल 4 टीवी पर ये सुना और देखा कि यहाँ पर मस्जिद फलकनुमा गैर आबाद है, और ये सुनते ही मेरा सर शर्म से झुक गया और मैं ज़ोहर की नमाज आके मैंने अजान दिया और अदा किया। शाह इनायतगंज पुलिस हुदूद में एक ज़ईफ़ खातून के सनसनीखेज़ कत्ल का 1 साल के बाद इंकशाफ हुआ है। औलाद ही अपनी माँ की कातिल निकली। पुलिस के मुताबिक आयशा साबिक़ा नाम भाग्या लक्ष्मी ने शौहर के इंतकाल के बाद मज़हब तब्दील करके जमाल खां से शादी की थी। उससे साबिक़ा शौहर से एक लड़का और एक लड़की थी और ये दोनों उसके साथ ही रहते थे। गुज़िश्ता 1 साल से लापता थी। उसके शौहर जमील खान ने गुमशुदगी की शिकायत शाह इनायतगंज पुलिस में दर्ज करवाई थी। वो मुसलसल चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पुलिस तलाश जारी है कहकर अपनी वापसी कर रही थी। तंग आकर वो अदालत से रुजू हुए। अदालत की मुदाखलत के बाद पुलिस हरकत में आई। टास्क फोर्स की टीम ने आयशा के लड़के बाबू और फराम बाबू को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो पता चला कि भाई और बहन ने मुजरिमाना साजिश करते हुए मकान हथियाने की खातिर आयशा का 1 साल पहले कत्ल कर दिया था और लाश को मकान में ही दफन कर दिया। अपनी मां के ही कत्ल के शर्मनाक इंकशाफ के बाद पुलिस ने निशानज़दा मकाम की खुदाई की और बाक़ियात बरामद किए। भाई, बहन, बाबू और करण को मां के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया। पेट बशीराबाद पुलिस ने एक कत्ल के मुअम्मे को हल करते हुए मकतूल की बीवी और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक चंद दिन पहले मेरचल के पास झोंपड़ी में रहने वाले गोपी का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को तहकीकात के बाद इस बात का पता चला कि गोपी की अहलिया लक्ष्मी और एक बेटी भी है जिसे वो शराब पीकर हरासा किया करता था, जिससे तंग आकर माँ और बेटी ने गोपी का कुल्हाड़ी के जरिए कत्ल कर दिया और फरार हो गए। चल्लापल्ली बीपीएल के इलाके में एक खाली टैंकर में धमाका होने से एक शख्स हलाक और टैंकर का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटरमना ने मीडिया को बताया कि एक खाली टैंकर की वेल्डिंग के दौरान ये वाक़या पेश आया, जिसमें वेल्डर शेख इमाम बरसर मौका हलाक हो गया, जबकि टैंकर का ड्राइवर प्रभाकर शदीद तौर पर झुलस गया, जिसे इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अजीज़नगर के इलाके में सिलेंडर से गैस खारिज होने से मकान को आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक सनत नगर के इलाके बोराबंडा साइट 3 में यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब चूल्हा सुलगाने के दौरान गैस खारिज होने से अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से मकान में रहने वाले 6 अफराद शदीद झुलस गए। पुलिस
मकाम वाक़या पहुँचकर ज़ख्मी अफराद को घर से बाहर निकाल कर उन्हें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। फायर ब्रिगेड ने कोशिश करके 1 घंटे के अंदर आग बुझाई। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुसूल अराजी बिल में तरमीम बालाए दस्तूर, कॉरपोरेट तबके को फायदा पहुंचाने का इक़दाम, बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से मुखालिफत। MLC इंतखाबात के बाद 3,36,000 अफराद को पट्टे फराहम करने, असम्बली में वज़ीर आला का ऐलान। तमाम सरकारी इम्तिहानात के उर्दू ज़बान में इनेकाद के लिए संजीदा इक़दामात करने, हुकूमत से अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। हैदराबाद के पुराने शहर में चेस्ट हॉस्पिटल कायम करने का मुतालबा, अराजी की फराहमी में मदद की पेशकश। चिल्लापल्ली में वेल्डिंग के दौरान एक खाली टैंकर में धमाका, 1 शख्स हलाक और टैंकर का ड्राइवर शदीद जख्मी। और शाह इनायतगंज में खातून की मौत के 1 साल बाद कत्ल का इंकशाफ, औलाद ही कातिल निकली। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। फी अमानिल्लाह।